Now, moving on, former Deputy Chief Minister and BJP leader Sushil Kumar Modi has accused RJD founder Lalu Prasad of trying to poach NDA MLAs from jail. Sushil Modi has released an audio where Lalu Prasad can be allegedly heard offering cabinet berth to a BJP MLA. If he helps RJD win Speaker's election, Lalu was allegedly speaking to BJP MLA Lallan Paswan and asking him to abstain from voting for the Speaker's post in Bihar Assembly today. Sushil Modi claimed that the RJD leader, who is jailed after conviction, is in for a scam, is calling up NDA MLAs and offering them cabinet berths if they switch sides and help in formation of a RJD-led government. Lalu Prasad is currently lodged in jail in Jharkhand's Ranchi, where Lalu's RJD is a part of the ruling alliance. RJD claimed the allegations are part of frustration of Sushil Modi at being denied the Deputy Chief Minister's post. Bihar is set to witness election for Speaker's post today, with the BJP nominee facing an RJD rival. हाँ, पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। चरण स्पर्श आपका, ठीक है? खुश रहे जी, अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में है सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बनाए। हमने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या अब इसकी शिकायत भी आप कीजिएगा? जी, इसकी शिकायत भी कीजिएगा? हम बैठ के तय करें पार्टी फोरम क्या होना चाहिए। हाँ, पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। चरण स्पर्श आपका, ठीक है? खुश रहे जी, अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में है सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। वो कहने लगे कि Rohit Singh is now joining us live for the latest on this. Rohit, can we independently go ahead and verify the authenticity of this particular tape that we've accessed? Well, see, India today cannot verify the authenticity of this tape, but it is being alleged by Sushil Modi and the BJP leaders that this is the voice of RJD Supremo Lalu Prasad, who yesterday called Lallan Paswan on his mobile number. And what Lallan Paswan, the MLA from Pirpati, is saying that he was sitting at Sushil Modi's residence at that point of time when Lalu Prasad called him, and he was luring him with a ministerial berth if he abstained from voting today and was absent today. So this is a huge allegation, because today, remember, the speaker post election is supposed to take place in some time from now. Both the NDA and the Mahagathbandhan have fielded candidates, so it will be interesting to see who wins in these elections. But Lalu Prasad Yadav, it is being alleged, that is trying desperately to topple Nitish Kumar government, and in that connection he called the BJP MLA yesterday, Lallan Paswan, asking him to remain absent from today's crucial voting. Absolutely. Rohit, continue to be with us. We're getting in political reactions that are coming in on the back of this particular tape that we've accessed. Let's listen in. अगर हमने ऑडियो को लिया है, डायरेक्ट बात हुई है, तो निश्चित रूप से ये फोन से बात। सुशील मोदी ने भी कहा है कि उनकी भी बातचीत हुई है उनसे सीधे लालू यादव से। देखिए, जो डायरेक्ट जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है, तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं? आरजेडी के विधायक इसे बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ललन पासवान है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हुआ है तो बहुत ही निंदनीय बात है। मैनेजमेंटेड वाली सरकार को हर समय गिरने का ही डर रहता है, इसलिए आदरणीय सुशील मोदी जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं
ये डर सता रहा है कि ये सरकार बिहार में जो मैनेज मैंडेट से बनी है ये किसी भी समय गिर सकती है। जनता का जनादेश बदलाव के लिए था, परिवर्तन के लिए था। इसी का डर हर समय आप लोगों को सता रहा है। इससे हम विचलित होने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव जी सड़क से लेकर सदन तक घसीट कर असली मुद्दे पर आपको लाएंगे। मैं सोचता हूं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नीतीश जी को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपमानित किया है पूरे चुनाव से लेकर अब तक, और अभी भी उन पर हर प्रकार से दबाव भारतीय जनता पार्टी बनाए हुए है, तो पहली बार उनको हर तरह से घेराबंदी उनकी हो चुकी है। तो इस परिस्थिति से, इस अपमानजनक परिस्थिति से उनको बाहर निकलने की जरूरत है। Rohit is now joining us live. I believe he's joined by a guest with him as well. Rohit, I'm going to throw straight across to you for getting us more reactions on the back of this allegation of the poaching bid that is coming in from jail on, by Lalu Prasad Yadav. Over to you. Live. Yes, huge allegations on Lalu Prasad Yadav, and I have with me Neeraj Bablu, who is the BJP MLA from Chhatapur. नीरज जी, ये ऑडियो आपने भी सुना होगा, क्या कहेंगे इस ऑडियो पे जो कल बताया जा रहा है कि ललन पासवान को लालू जी ने फोन किया है रांची से? देखिए, जिस तरह का मामला सामने आया है ये काफी खतरनाक है, काफी डेंजरस है। लोकतंत्र में इस तरह से किया जा रहा है, ये काफी दुखद है। झारखंड में बैठ करके वो जंगल राज को लाना चाहते थे बिहार में, उसमें सफल नहीं हो पाए, तो अब झारखंड में बैठ के यहाँ तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाह रहे हैं, जंगल राज में फिर से तब्दील करना चाह रहे हैं बिहार को, जो संभव नहीं है। और हम समझते हैं ये जांच का विषय है, अविलंब इस मामले की जांच होनी चाहिए फोन कॉल्स का। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी को वहां से स्थानांतरण करके झारखंड से तिहाड़ जेल शिफ्ट करना चाहिए, तभी जांच भी संभव हो पाएगा। तुरंत तिहाड़ जेल भेज करके और सीबीआई जांच करानी चाहिए। तिहाड़ जेल लेकिन कैसे भेजेंगे? वो तो कह रहे हैं उनकी तबीयत खराब है, वो तो केली बंगलो में वहां रहते हैं रिम्स में, तो वहां भी अलग बंगलो उनको दे दिया जाएगा। और काफी वहां वो जेल में नहीं है, वो गेस्ट हाउस में रेस्ट कर रहे हैं, झारखंड में जंगल राज चला रहे हैं, आनंद वहां ले रहे हैं, तो उनको तिहाड़ जेल बगैर गए कोई उपाय नहीं है। तिहाड़ जेल भेजा जाए और सीबीआई से जांच कराया जाए मामले का। तभी आरजेडी के विधायक कह रहे हैं डॉक्टर है, ये फर्जी वीडियो है, तो जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा, फोन कॉल से सामने आ जाएगा, मोबाइल किसका वो सामने आ जाएगा, नंबर से सामने आ जाएगा, और किनको किनको कॉल किया गया वो सारा सब कुछ सामने आ जाएगा। जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, अविलंब जांच होनी चाहिए। 27 तारीख को उनके जमानत पे सुनवाई भी होनी है कोर्ट में, तो क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है? देखिए, कोर्ट का मामला अलग है, कोर्ट के मामले में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इस मामले में सीबीआई जांच हो और लालू प्रसाद जी को तिहाड़ जेल भेजा जाए, मैं ये मांग करता हूँ। जांच की भी मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, सीबीआई जांच हो, इसकी जांच होनी चाहिए। अब बहुत खतरनाक बात है लोकतंत्र के लिए, एकदम सीबीआई जांच होनी चाहिए। So there you have Neeraj Bablu, the BJP MLA, criticizing Lalu Prasad Yadav that he was trying to bring back Jungle Raj into Bihar, and he's demanding that Lalu Prasad should immediately be shifted from Ranchi jail to Tihar jail, and also demanding a CBI probe in this entire controversy. Absolutely. Leave it at that. Rohit, thanks so much for getting us those reactions right there. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.